guys, welcome back to my channel. I have been waiting to make this video for a long time, but the time has spent thinking. But if not today, tomorrow I have to make this video. So I was going through some of the videos on YouTube and I have seen some disturbing content there. Some people are suggesting prescribed medicines to their viewers by saying it as a fairness cream. I feel very bad when I think about those innocent people who just blindly follow the advice of such YouTubers without knowing the truth. I'm not saying this without any evidence in this video. I'll show you the evidence and the scientific facts so that you people got to know what blunder the people are making. So today's video is all about Retino, Retinoids, Retino A and whatever you call it. So today's video is all about this cream, and not all of them, but some of the YouTubers are misleading their viewers by calling it as a fairness cream or something that gives you the glow and something that brightens up your skin in just 7, 15, 30 days and whatever. I'm saying this with so much of confidence because this particular cream was recommended to me by a dermat when I was battling with severe acne, and I have been using this cream for last 5 to 6 years. I have started this cream when I was 19 years old, and you can calculate by adding 6 years to 19. This video is not about what are retinoids, what is Retino A and how can we use them, how can we have the glowing skin by using it correctly. Nothing like that. I am just here to tell you the truth about Retino A. So while watching the video, I have seen some of the comments that literally terrified me because people are asking such silly questions to a non-professional person who is not even a doctor, and people have literally admired their recommendation and started using this cream in their daily routine. I mean, what's that? And in this video I'm going to show you all those comments which were on those videos, and I will answer all those people. So I really wanted to know what are retinoids in order to answer all these comments. Retinoids is a huge family of compound and it's a derivative of vitamin E. It is available in various forms in the market, like in OTC to prescription level, in topical and oral medication form. So I will start with the comments first. But if you really want to involve retinoids in your skincare, I will suggest you to involve OTC retinoids in your skincare that is available in eye creams, moisturizers, night creams. मुझे खुशी होती अगर वो यूट्यूबर OTC retinols के बारे में बताती, ना कि इस prescribed version के बारे में. And now I'll explain you how these OTC retinoids work. There are 3 OTC retinoids present in the market, and 3 of them are Retinol, Retinoid, Esters and Adapalene. So these 3 are present in the OTC form in the market that you can use because these 3 are very mild to your skin, and prescribed retinols, that is retinoic acid and Iso-Tretinoin, should be taken in the supervision of a doctor. आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है कि वो उसका रियल कलर होता है उस बच्चे का, और ग्रेजुअली उसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है. तो रेटिनॉल आपको मदद करता है कोलाजन प्रोडक्शन में, सेल टर्नओवर में, डेड सेल्स को रिमूव करता है और न्यू सेल्स आपके बनते हैं, जिससे आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा फर्म नज़र आती है. बेसिकली ये आपके फ्लॉस को कम करता है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी त्वचा है जो गोरी हो रही है. ऐसा नहीं हो रहा. आप में से किसी ने अगर कभी सनस्क्रीन यूज़ नहीं की है तो आप प्लीज़ एक 15 SPF की सनस्क्रीन लेके आना और आप उसको रोज़ यूज़ करना. 1 महीने यूज़ करने के बाद अच्छी क्वालिटी की लेके आना. आपको ये लगेगा कि आप गोरे हो गए हो. तो क्या आप गोरे हो गए हो? सनस्क्रीन से आप गोरे हो गए हो? नहीं, सनस्क्रीन आपको गोरा नहीं कर रही. आपके जो चेहरे पे टैनिंग है जो धूप के कारण हो गई थी वो उसको रिमूव करने में मदद करता है. मतलब ये नहीं है कि सनस्क्रीन इज अ फेयरनेस क्रीम. बेसिकली चाहे वो रेटिनॉल हो चाहे वो सनस्क्रीन हो, ये आपके ओरिजिनल कलर को रिस्टोर करता है, ना कि आपको गोरा बनाता है. अगर आप चॉकलेट स्किन के हो तो आपकी स्किन कलर वही रहेगा, आपकी त्वचा थोड़ी इवन हो जाएगी,
फर्म हो जाएगी, कोलाजन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, स्किन थोड़ी टाइट हो जाएगी और अल्टीमेटली इन सभी चीज़ों से आपकी स्किन ब्राइट लगेगी। और उस ब्राइटनेस को हम फेयरनेस का नाम नहीं देंगे। मैं फेयरनेस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, मैं लाइटनिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। अगर आपको मुझसे बात करनी है आप ब्राइटनिंग की कीजिए। ऑन टू आवर नेक्स्ट कमेंट, स्किन पीलिंग होना और ड्राइनेस आना, फ्लेकीनेस आना, ये सभी सिम्टम्स हैं रेटिनो ए के, ट्रेटिनोइन के साइड इफेक्ट्स के। तो अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछते तो वो प्रॉपर आपको गाइडेंस देता कि आपको किस तरीके से इस क्रीम को यूज़ करना है, कितने परसेंटेज में यूज़ करना है और कितनी बार यूज़ करना है। तो अपना वक्त है जो ज़ाया ना करें। मैं समझ सकती हूँ जब भी हमको स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर कोई धब्बा भी हो जाता है, मुझे भी हो रहा है, ये देखो ये, तो कोई धब्बा हो जाता है तो हम इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं ना अपनी स्किन को लेके कि जल्दी से ठीक हो जाए, बस ये गलत है। हो सकता है कि आप अपनी स्किन को सही करने के बजाय इसे बिगाड़ दें। तो प्लीज़ कंसीडर द एडवाइस ऑफ अ प्रोफेशनल और किसी डर्मेट को जाके दिखाएं। एक और सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर हैं और उनका ये कमेंट देख के मुझे लिटरली दिल से बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ हुई थी ये सिचुएशन। ऐसा मैंने कमेंट नहीं किया था, लेकिन जब आपका चेहरा खराब होने लगता है, पिगमेंटेशन होने लगती है या कुछ गलत होने लगता है आपके साथ, तो आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है और उसको आप जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट चाहते हैं। सोचिए, मैं 5 साल से इस क्रीम को यूज़ कर रही हूँ। मैं चाहती तो पहली वीडियो इसी पे बनाती। मैं 5 साल यूज़ करने के बाद मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकती हूँ कि ये किस तरीके से यूज़ करती है, मेरे स्किन पे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ, स्कार्स मिटे हैं या नहीं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं 10 वीडियो बना देती इस चीज़ पे, लेकिन मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ और मैं मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ या मेरे व्यूअर्स के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं कर सकती। प्लीज़ मैं आप सभी को यही कहूँगी, मेरे चैनल की ये टैग लाइन है, बी अ कंज्यूमर नॉट अ बायर, जिसका मतलब यही है कि लोगों को देख के आप इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुई है। अपना दिमाग लगाइए, सोचिए कि आपका कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है। अगर कोई आपको कोई सलाह दे रहा है, अगर किसी की सलाह से मेरी स्किन अगर ख़राब हो जाती है तो क्या मैं उस इंसान को ब्लेम कर सकती हूँ कि तुम्हारे कारण ये हो गया? उन्होंने तो डिस्क्लेमर में बहुत बड़ा बड़ा ये लिख दिया है कि हम प्रोफेशनल नहीं हैं, आप जो भी चीज़ प्रयोग में ले रहे हैं वो अपने बेसिस के ऊपर ले रहे हैं, हम किसी भी चीज़ के जिम्मेदार नहीं हैं। आप चाहें तो अबाउट सेक्शन में जाके ये डिस्क्लेमर देख लीजिएगा। हर एक यूट्यूबर के डिस्क्लेमर में आपको ये लाइंस लिखी हुई मिल जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट कमेंट है, ये मेरे को बहुत अप्रिशिएबल लगा कि इन्होंने इस चीज़ पे आवाज़ उठाई कि जब आप इस चीज़ को यूज़ नहीं करते तो आप दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि आप यूज़ करें। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो रेटिनो को लेके होती है, लोग ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा आप लगाओगे और जितना फ्रिक्वेंसी के साथ आप इसका जो परसेंटाइल है वो इंक्रीज करोगे, उतना ज़्यादा ये असर करेगा। और ये बिल्कुल झूठ है। अगर चाहें तो आप किसी डर्मेट से पूछ लेना, वो भी आपको ये कहेंगे कि पी साइज्ड अमाउंट ही आपको यूज करना है। पीलिंग होना, स्किन पील होना एक साइड इफेक्ट माना जाता है रेटिनो ए का, ना कि इंडिकेशन कि आपकी स्किन सही हो रही है। तो ये आप भूल जाएंगे, अगर आपकी स्किन पीलिंग हो रही है तो आपकी स्किन हील हो रही है। ये बिल्कुल और बिल्कुल एक गलत बात है, ये सबसे बड़ा मिथ है। जब रेटिनॉल यूज करने का सजेशन दिया जाता है तो ध्यान में रखा जाता है कि वो जो पर्सन है उसका स्किन टाइप ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है या फिर नॉर्मल है या सेंसिटिव है। अगर आपका जो पीसीओडी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है तो आपका एक्ने ऑलरेडी ठीक हो जाएगा। तो आप इस पे कॉन्सेंट्रेट ना करें कि हम एक्ने को रिड्यूस करें, आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करें कि हम पीसीओडी को कैसे क्योर करें। उसके बाद में आप अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे पूछिए कि एक्ने के कारण अगर आपको कोई ब्राउन स्पॉट्स हो गए हैं, कोई स्कार्स हो गए हैं, तो आप उनसे पूछिए कि पीसीओडी के कारण आपको एक्ने हुए थे और उससे ये स्कार्स हो गए हैं, तो अब इन स्कार्स से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। आप इस तरीके से बहकावों में ना आए कि कोई इंसान कुछ सजेस्ट कर रहा है और आप उन सजेशंस के ऊपर अपने स्किन पे कुछ भी लगाए जा रहे हैं।
हो सकता है कि आपकी स्किन और प्रॉब्लम में आ जाए। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स हैं और ऐसे भी कमेंट्स हैं जहां लोगों ने इसे यूज किया है और उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई है। किसी का चेहरा काला हो गया है, किसी के चेहरे पे स्पॉट्स होने लगे हैं, किसी की जो स्किन है वो सेंसिटिव हो गई है। आप खुद सोचिए, जो इंसान अपनी आधी उम्र लगा देता है डॉक्टर बनने में, तो आप ये मानते हैं कि हम जैसे लोगों को ज्यादा नॉलेज होगा उनसे? आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि आप ये रेटिनो ए लगाइए और आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स निकल जाएंगी, तो क्या आप ये समझते हैं कि एक डॉक्टर से ज्यादा नॉलेज मुझे होगा? मैं केवल आपको वही प्रोडक्ट रिकमेंड करती हूँ जो कॉस्मेटिक से जुड़ा होता है, ना कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि वास्तव में एक दवा है। ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं ना, ये एक दवा है। इसको एक दवाई की तरह प्रयोग में लिया जाता है। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको रेटिनो यूज करनी है तो सीरम आते हैं मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कंपनी के, उस पे सारे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, आप वो यूज कीजिए। उसमें बहुत नॉर्मल फॉर्म में रेटिनो आता है जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। उसमें हाइलुरोनिक एसिड भी इन्फ्यूज आता है। बहुत सारे ऐसे ऑयल इन्फ्यूज्ड होते हैं जिससे आपको रेडनेस, पीलिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी और अंदर ही अंदर जो रेटिनो ए है वो अपना काम भी करता रहेगा। So here on the screen you can see the skin biopsy that is done in a scientific research which proves that the regular use of retinol or retinoic acid, I am talking about both of them, retinol that is a OTC and retinoid that is a prescribed version. I am talking about both the version, that both results in thickening of the skin. So that is a scientific research. They have compared both retinoids and retinols. As shown on the screen, they have not tested it on a single person. They have tested it on 6 different persons, and the results are same for the retinols and retinoids, that both leads to the thickening of skin. So this is a myth that retinol and use of retinoids leads to thinning of skin. It in turn thickens your skin, enhance the collagen production. Most of the people will think that why we use OTC retinol, because it is a slow process. They will approach this cream so that they can achieve the results in few months or in few weeks. So for those people, I have a scientific research on retinol and retinoids and their comparison. They have mentioned that both retinol and retinoids work similar. It increases collagen production and results in thickening of the skin. In order to come to a conclusion, they have also tried retinol 0.1% on a female who is having lots of facial wrinkles on her skin, and the results are in front of you. The results are on the basis of retinol treatment over 12-week period, and the transaction from first picture to the fourth picture is in front of you. You can see the results, that how well the retinol works, how OTC retinol works. The scientists come to a conclusion that on smaller magnitudes, the results of both the retinols and retinoids are same. They both contribute to collagen production in a equal way. They have compared the historical and clinical history of retinol and retinoid acid both, and they concluded that retinol works better, the OTC retinol works better on aging and treating wrinkles than retinoic acid treatment. So my final thought or the use of retinoids are, if you really want to use retinoids without the prescription of doctor, I will suggest you to use OTC products, that is over the counter products. These are the retinoids which are on the safe side. If you really want to involve retinol in your skincare, I will suggest you to use a good face serum, eye creams, and there are a lot of moisturizers available in the market. You can choose according to your skin type. I am mentioning this term, the skin type, because the skin type is really important while choosing a good retinol for yourself. I have some suggestion for the people who are under 25. I'll suggest them to use a good sunscreen to avoid the harmful rays, that is the UVA and UVB rays of sun, to avoid photo aging.
And if you are battling acne, I'll suggest you to talk to a dermat as early as possible. And that's all for today's video, guys. If you like the content, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel. बहुत बहुत रिसर्च लगती है और बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है. थैंक यू.